good afternoon to everybody. We have with us one of our bright doctors, Dr. Pranav Punj, who has scored an amazing score of 226 in his first attempt, and he's one of our foundation students, and something we really admire to speak to, and we really appreciate the efforts that they have done, and he's a huge inspiration to a lot of future aspirants. Dr. Pranav, please introduce yourself and how is it feeling now? Thank you so much, sir, for having me. I'm Dr. Pranav from SC Medical Institute. I'm like old joinee of the ARISE team. Like you came in my university and you start teaching anatomy. And that time I wasn't like you are anatomy teacher or like that. So many friends are there. We talked with you and you guided us. It will be good. Connected with ARISE, connected with us, and it will be good. So Nice. that's how things started, sir. नाइस Thank you. नाइस। और प्रणव, कहाँ से हो एग्जैक्टली? आप इंडिया में कहाँ से हो और लाइक आप एशियन की जर्नी कैसी हुई थी? सर मैं इंडिया में बिहार से हूँ। बिहार में मोतिहारी चंपारण से, पूर्वी चंपारण से। एंड एशियन की जर्नी सर, इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी बिकॉज फ्रॉम आई came from a middle class family. I don't know how it's happened, but it happened, and it was a beautiful, sir. It was a beautiful journey. Nice. And Pranav, first attempt में 226 लाना is not an easy journey, and especially to an exam which has 29% pass percentage, and in the first attempt scoring 226. What do you think are the main things that you did right to achieve this score? Sir, my main things were three things I just noted when you said me that you are going to interviewed by me. Then that concept is a main thing when you build in a foundation days. Like when I saw the questions, then that things are like not the same previous year question are there, but it's a little bit tricky. Options are a little bit tricky. You have a good foundations, you have a good concept, then you can easily solve that problems. I just remember one thing that when I came out after first paper, then various people are saying that it is a tough, and one of my friend asked in front of all of them how was paper. He know that I studied good. Then I said it was a little bit moderate but easy paper. Then all are suddenly they said how it's possible. And then but I think that it was a moderate paper. It's a doable paper because of concepts. And second part, stick with the one platform, stick with the one teacher. Then I have a good confidence in a exam that I can solve that question. Nice. And Pranav, the main thing that you're saying is concepts. Like, and आप कब से पढ़ाई करना शुरू करे थे? As you go there abroad, फिर वो adjust होने में time लगता है. And how was the atmosphere for you? आप बिहार से आते हो. You said you come from a place which was not where going abroad was new thing. तो how was the whole acclimatization process? आपको कुछ नयापन लगा वहां पे या फिर आराम से सेटल हो गए थे? Sir, it took 1.5 years like for adjustment, all the adjustment. In 2019, when you people came in Kyrgyzstan, like in our institute, then first time we know about any platform of online platform also. Like you are teaching that one platform, and after that you came and you promised us like we will be there, like we will not let you down and trust us. You guys are there in a COVID also. Like you guys do a lot of effort by online teaching, by Zoom calls. They teach us like in a online platform. Nice. In total 2021 they taught us. Nice. I'm really happy. आप लोग वो early days of ARISE भी याद रखते हैं, right? I think आप लोग का journey वो पूरा ARISE को भी देखा है. हमने भी आपको grow करते हुए देखा है. आप लोग ने हमको grow करते हुए देखा है. So it's a very memorable journey. सर आपने जो स्टार्ट से जो वो लगाया था ना, वो आग बोल सकते हैं उसको सर, कि तुम कर सकते हो, हम तुमको गाइड करेंगे. मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ डॉक्टर सर. अपने फैमिली में मेरे दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है कि, तो आपने जो गाइड किया ना कि तुम कहीं से कोई गाइडेंस नहीं लो, हम हैं तुम्हारे साथ में, तो हम कर सकते हैं वो, तो हम साथ मिलकर कर सकते हैं, तो हम साथ मिलकर कर रहे हैं सर. really happy. काफी खुशी हुई. I remember हम लोग एशियन में भी आप लोग कई बार पूरे हर सेशंस के लिए आप लोग प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होते थे.
एंड कितना यस यूजफुल था एशियन में जो क्लासेस आप लोग को होते थे, इतना थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता था आप लोग को क्लासेस भी अटेंड सर, करना, फिर इवन फाइनल ईयर में जब आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ द अचीवर्स बैच आल्सो, राइट? तो आप लोग यस सर, सारे यस। अचीवर्स बैच में भी थे, तो काफी सारा हेक्टिक भी होता था, शाम में भी क्लासेस होते थे। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दोस क्लासेस, जो यूनिवर्सिटी के क्लासेस के बाद ये क्लासेस फिर अडेप्ट करना? इट इज नेसेसरी फॉर फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, हम्म, बिकॉज यहाँ जो है दिल्ली में ना चाहते हुए भी टीचर्स को एक पेस के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ टीचर्स जो है वो काफी स्मूथ और बहुत शांत लेके चलते हैं। हाँ, वो थोड़ा हेक्टिक होता है हम सब स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सुबह से क्लासेस करनी पड़ती है। हम्म, सर, दो तीन चीज याद है मेरे, पीएसएम सर आपने मोहित सर को भेजा था। क्या? उन्होंने 5 दिन में पीएसएम सर इतने स्मूथ पढ़ाए थे कि वो 90 पेजेस के नोट्स बने थे मेरे सर। हम्म, और मेरे कलीग्स जो दोस्त हैं वो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़े थे मोहित सर से, उनके हम्म, 180 के नोट्स थे वहां पे, और दोनों के नोट्स सेम है। और मैंने लास्ट तक वो नोट्स रखा 90 पेज का। मैं लास्ट में ऐसे हो गया था कि मुझे याद था कि इस सिस्टम को मुझे इतने देर में कर लेना है, और वो हम्म, मेरे दिमाग में 45 मिनट का ये सिस्टम है, 30 मिनट का ये सिस्टम है, 30 मिनट का ये पेजेस है। पूरे 90 पेजेस में मैं 5 आवर में पीएसएम पूरा रिवाइज कर रहा था। awesome, ना awesome. सर, तो ये चीजें वहां से मिलती है, और वहां से एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप लॉन्ग आवर्स स्ट्रीट करने का भी कैपेसिटी बढ़ती है, जो कि आप दिल्ली में आके फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो वो नया करोगे, वो यहाँ एक्लेटाइज करने के लिए आपको एक दिन, एक मंथ, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट के। बट वहां से अगर करोगे तो आप जल्दी यहाँ एकोमोडेट करते हैं, और सेम टीचर रहते हैं वहां पे जो पढ़ाते हैं, यहाँ भी वही सेम टीचर रहते हैं, तो नोट्स भी सेम रहता है, तो फिर तो चीजें और आसान बनती है। Awesome. एंड प्रणब, आप लोग एक ग्रुप में आते थे, आई रिमेम्बर कि आप लोग का एक ग्रुप रहता था, हमेशा एक साथ में रहता था। आप लोग के यस ग्रुप सर। फ्रेंड्स, ग्रुपमेट्स का परफॉर्मेंस बताइए, कैसा हुआ सबका? सर, मेरा रूममेट था चार, मेरे रूममेट थे, उनमें एक आकाश, डॉक्टर आकाश धाकड़, ही वाज 223, ही स्कोर्ड नाइस। 223। डॉक्टर सुनील मौर्य, ही स्कोर्ड 170, and Dr. Pradeep was 176. And after that, my group mate was there, like 12 group members are there, na? All passed FMG, काफी all are काफी there. खुश कर दिए आप लोग का जो रिजल्ट था ना, इट वाज नॉट जस्ट पासिंग विद वेरी गुड स्कोर्स एंड पासिंग इन बिग नंबर्स, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग। It made all of us very happy at Arise, and all the efforts that we have done over the years, felt fruitful. कि जब हम देखते हैं कि जो एशियन का स्पेशली रिजल्ट्स जो आए थे, we felt very very happy about that also. और जो आपने वो सीड डाल के जो ग्रो किया ना, हम लोग वो ग्रोइंग प्लांट है सर। वो ओह, आप टीम थे आप लोग। सर, ट्रू। वो ग्रोइंग प्लांट है, वो आपकी मेहनत है सर। आई मतलब इगरली वांट टू टॉक विद यू सर। सर रियली, टीम ने पूछी कि किससे बात करनी है, तो सबने मैं सर खलील सर की बात बोली कि मुझे उनको थैंक्स बोलना है कि हाँ, वो ग्रोइंग प्लांट हम लोग हैं। वो धीरे धीरे हम लोग में से ही लोग बिग कर रहा है। डॉक्टर शशि वाज देयर, ही Yes, सीनियर, नाउ yes. ही a surgery Yes, resident in a yes, I remember. And I remember the whole journey of, Dr. Shashi also. And we are very, very proud of each one of your contribution. And काफी खुशी भी होती है देख के आप लोग को जो इतना अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनते हो बैक इन इंडिया। It's a dream come true for all of us also, and we were hoping for this kind of results, and you all made true. And आप लोग का जो एफर्ट था, जो कॉन्फिडेंस था सिस्टम में, और ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर प्रणव, लाइक आपको क्या लगता है कि भाई उस टाइम पे कुछ बच्चे ना फिर भी जुड़ते नहीं है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट डू यू फील देयर पर्सपेक्टिव इज? सर, फर्स्ट अभी तो काफी चीज चेंज हो गई है। अभी तो राइज के ऊपर लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। खासकर मेरे इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट ने भी काफी हेल्प किया वहाँ के, कि हाँ, क्लास टाइमिंग चेंजेस कर दे रहे हैं। क्लास के लिए थोड़ा सा हेक्टिक था वो, जब टीचर्स आ रहे हैं तो वो हेक्टिक क्लास को कम कर दे रहे हैं। बट फिर भी ट्रस्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो कि टीचर्स पे ट्रस्ट करना। और वो ये नहीं जान पाते हैं कि हाँ, यही टीचर वो वहां भी पढ़ाते हैं, वही टीचर इंडिया लेवल के टीचर हैं। और वो होमो में जो होते हैं ना कि हाँ, इनके नोट्स से आएंगे कि नहीं, और ये मे भी छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं। अब तो वो चीजें चली गई, क्योंकि आपने इतने दिन टाइम बिताया सर, कि आपने इतने दिन टाइम बिताया वहां पे, कि वो चीजें छूट गई कि हाँ, ये छोड़ के चले जाएंगे। वो समझ गया, सब लोग समझ गए। बैक डेज जब पहली बार हम लोग थे ना, तो हम लोग को ये डर था कि सर छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग ने बहुत सारे पैसे लूजेज किए थे। तो आपने जो फ्री क्लासेस दिए ना सर, कि हाँ, वो मैं आपको पर्सनली ये फर्स्ट दिन मैसेज किया था जब मेरा रिजल्ट आया, कि सर
केवल मैं नहीं, और आपने जो नोनली अननोनली बहुत सारे स्टूडेंट को जो हेल्प किया विदाउट मॉनेटरी बेनिफिट, विदाउट एनीथिंग। सपोर्टिव था राज का टीम, राज का मैनेजमेंट वहां पे, कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पैसे बाद में देना, ये करना, दैट्स ऑल पे ऑफ सर, दैट्स ऑल पे ऑफ। We wanted students to get attached to the whole process and trust the system. और वो क्या था ना, पहली चीज तो बच्चों को वो भरोसा दिलाना, और इतने इतने कंफ्यूज थे वो बच्चे, तो उस चीज से, और आज जो आप लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, it's a big journey and an emotional journey for us also, and a huge support from the management at Asian also. It's not easy to fluctuate the schedules, timetables and stuff. Everybody involved in the management, they have been very cooperative, and अब कुछ डिफरेंस आया आप लोग को क्लासेस करने के बाद और यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो पढ़ते थे? फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी कर लिया होगा, फिर वापस आप यूनिवर्सिटी के सेशन में हेल्प होता है यूनिवर्सिटी के क्लासेस में, ये जो क्लासेस आप जो अटेंड कर रहे थे? सर डेफिनेटली सर, क्योंकि जब क्लासेस चल रही थी, बहुत सारी क्लासेस चल रही थी, लाइक वी वर डूइंग सर्जरी इन क्लासेस, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग सर्जरी इन आवर Arise यूनिवर्सिटी। team with Arise coaching. Then several things are overlapping. We know all are in like syllabus are same. Then whenever we study like in surgery in a coaching, then we can perform better in a classes. And exam is a piece of cake for us, like in a university exam. Then Nice. all our confidence are like on a high level that we can do, Nice. we can do, we can do. Nice. We in our institute, like we have a 20 questions MCQ type. One test are there. We every time whenever our syllabus are completed, like PSM and something like that, like biochemistry are there, then our marks were like suddenly increased out of 20, 18, 17, like there. So that's all are helpful, sir. That all are Nice, nice, nice. And Pranav, एमसीक्यू प्रैक्टिस कब से शुरू करें? क्लासेस, थियरी क्लासेस तो आप बोल रहे हैं फाउंडेशन डेज से आप चल रहे थे, और काफी कितने क्लासेस कर लिए थे आप लोग यूनिवर्सिटी के डेज में? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स बिफोर योर फाइनल ईयर वर डन? सर क्लियरली सर सब सारे सब्जेक्ट कर लिए थे वहां पे, बट मैंने 10-12 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए थे वहां पे। 12 सब्जेक्ट को मैंने वैसे ग्रास्प में रखा कि हाँ, जब प्रसन्नवीज सर आया ना सर, आपने जो भी प्रॉमिस किया था ना उस टाइम में जूम मीटिंग पे, अप्रॉक्स 98%, 99% आपने डिलीवर कर दिया। तो लगा कि हम लोग बहुत मतलब वो लकी है कि हमारे टाइम में इतना कुछ हो रहा है। और प्रसन्नवीज सर आए और हमने जब पूरे कंप्लीट किए ऑप्स गायनी, तो हमें लगा कि बिग 4 जो बोलते हैं हम सर, इनकी ऑप्स गायनी, पीएसएम, मेडिसिन और सर्जरी, सर्जरी छोड़ के हमारी 3 बिग 4 में से हो चुकी थी। तो हमारे लिए काफी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था कि हम तो 3 कर चुके हैं, कि हमको यहाँ पे अब आने के बाद से 150 के लिए मेहनत नहीं करना है। वो आप जो बोलते थे ना सर कि यहाँ से तुम जाओ तो वहां पे अब एडअप करो, वहां पे 149 इक्वल टू 0, तो हम तो पहले सुनते आ रहे थे। 149 टू 150 हो चुके हो तुम लोग, यहाँ से अब बस आगे चलो। आप लोग को डिफरेंस दिख रहा था? आप लोग जो करके आए थे और जो नए बच्चे आ रहे थे, जो फर्स्ट टाइमर्स आ रहे थे, आप लोग फील कर पा रहे थे डिफरेंस? A lot of difference सर, बहुत सारी चीजें थी, हमको पहले से पता होती थी कि ये चीजें इस तरह करनी होती हैं। हमारे टीचर्स वहां जो पढ़ा चुके हैं वो हमको ये बता चुके थे पहले कि ये इसको ना, ये लेंदी प्रोसेस है, हम इसको यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कि हाँ, जब हम प्रियांश सर से मेडिसिन किए वहां पे 2 सेशन में 4 यूनिट, तो उन्होंने सर ने बता दिया था कि बहुत सारी चीजों के पीछे भागना जरूरी नहीं है, कि तुमको थोड़े थोड़े छोटा छोटा स्टेप लेके मेडिसिन को कवर कर लोगे तो चीजें हो जाएंगी। और वो लास्ट तक दिखी, और बाद में भी लोग जो यहाँ पे राइज दिल्ली में थे, वो बाद में लास्ट में जाके समझ पा रहे थे कि हाँ ये मेडिसिन है, वो इतना इजी कैसे हो सकता है, नहीं इसको, और वो खुद से हम कॉम्प्लिकेट करते हैं ना चीजों को सर, वही वाली चीजें सब लोग गलती करते हैं। अगर हम कहीं पीछे में चीजें बैकवर्ड्स में हम चीजें करके आते हैं, देन हम वो मोर कंफर्टेबल और मोर ट्रस्टेबल हो जाते हैं टीचर्स पे, कि हाँ सर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं बस, देन गुड। प्रणव, आजकल बच्चों को ना इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के लिए इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा यूट्यूब, टेलीग्राम, एप्स आ गए इतने सारे। इस चीज में एक सोर्स से स्टिक होना और उस पर ट्रस्ट करना ऑटोमेटिकली एक्चुअली बहुत सारा डिफिकल्टी होता है। कभी ऐसा लगा कि ये कंटेंट काफी होगा क्या, कोई और बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, कोई और मटेरियल में कुछ और कंटेंट है, ये डाउट आता है? सर स्टार्टिंग में आती थी, बहुत ज्यादा फोमो होती थी सर, कि वो जो ऑप्स गाइड है ना हमारी, वो इतनी मोटी दिख रही है दूसरे प्लेटफॉर्म की, कि लगता था कि
हमारी तो बहुत पतली है सर, अब हाँ, 100 120 130 पेजेस में हमारी ये लोग कवर क्या है। पढ़ा रहे हैं, ये लोग क्या खत्म कर रहे हैं, नहीं हाँ, करेंगे। वो स्टार्टिंग जब हमने पहली बार पढ़ा सर से, तो लगा कि क्या इतना ही में काफ़ी है? ये मतलब हमारी पहली क्वेश्चन ही सर से हो जाती थी कि किसी भी टीचर से, "सर आप पढ़ा रहे हो, उतना में से आ जाएगा सर?" तो लगता था कि सर बोलते थे कि, "हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।" बट बाय द टाइम हम जब प्रैक्टिस करने लगे, उस हमने ने सर हमारे इस ग्रुप में जितने भी थे, उन्होंने ट्रस्ट किया सर प्रोसेस पे। और हम्म, मैं ये एक मतलब डिमेरिट्स मानता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट में मानता हूँ, जो उस चीज़ पे स्टिक नहीं करते हैं सर, उस चीज़ को छोड़ के अलग चले जाते हैं, जो वो 500 पेज के पीछे चले जाते हैं ना सर, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर कर लेते हैं। और एक बात और सर, दूसरी चीज़ है, आपने सर जो यूट्यूब, टेलीग्राम की बात की थी, तो हमको याद है सर, लास्ट में आप क्विक रिवीजन प्रोग्राम के लिए आए थे यहाँ क्यूआरपी के लिए। हम्म, आफ्टर दैट सर आपने बोला कि बाढ़ आएगी सर यूट्यूब पे नॉलेज की। हम्म, देयर विल बी फ्लड्स विल बिकम ऑन यूट्यूब। मुझे लिटरली वो चीज़ हरदम हिंट किया, हर ये वर्ड ही मेरे को याद आ रहा था पूरे हमेशा, क्योंकि लिटरली बाढ़ आ चुकी थी सर लास्ट दिसंबर में। ये नॉलेज की सब लोग अपने शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे थे, 1.5 घंटे में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। आपने वो बोला ना कि सर यू स्टिक विद योर नोट्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। I stick with my notes and I trust the process, sir. That's it. Uh, नाइस। Multiple time revise a single notes. Multiple time whenever I feel like there is something I'm missing out. I remember your faces and our teacher faces. बस सर मेरे लिए काफी था वो। एंड प्रणव, आप आने से पहले डिसाइड करके आ गए थे कि हमें को अराइज दिल्ली जाना है, या फिर इंडिया आने के बाद आप सर्च कर रहे थे? काफी सारा प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा था, और उस टाइम पे भी बच्चे सारे कंफ्यूज होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स नॉट एबल टू जॉइन मेनी ऑफ आवर सेंटर्स बिकॉज ये वो लोग इंडिया आने के बाद फिर 4 जगह घूम के करके फिर डिसीजंस लेते हैं। आपका माइंडसेट कैसा था? वर यू फिक्स्ड बिफोर यू कम बैक फ्रॉम एशियन? Yes, sir. I was fixed. Like I called you when I was in ASEAN, and you guided me that don't worry, you have studied well there, and come here, and we will grow together here. Then I just called Sasi sir. I asked all the process, and we were like we enrolled already enrolled in a RISE, and after that we started. आप I did joined the you have 12th any? batch. मैं आप पे अगर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। देन मतलब मेरा थिंकिंग ये चलता है कि आई नो, मतलब अलोंग बैक दैट देयर इज खलील सर, नदीम सर, एंड आई सॉ दैट मेरे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स निकाले हैं राइज से, तो जरूर कोई ना कोई तो बात है उस प्रोसेस में, उस सारे टीम में, जो कि हमारे हमारी तरह के स्टूडेंट हैं। वो लोग भी हम लोग देखे हुए हैं, वो लोग निकाल रहे हैं, तो मे भी हम लोग भी उसी तरह के स्टूडेंट है तो निकाल जाएंगे और वही और प्रोसेस से अच्छे गुजरेंगे। अच्छे नंबर से निकाल रहे हैं, तो वो काफी खुशी की बात है। और जो काफी एफर्ट जो आप लोग लगाते हो, और वो सुन के फिर वापस जाके एफर्ट लगाना। अब आप प्रणव ये बताइए, व्हेन यू केम बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू अराइज दिल्ली, और यहाँ का जो सिस्टम था, यहाँ पे बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा है, एकदम से एक इंटेंस मोड में आ जाते हो। हाउ सर डिफरेंट वाज द स्टडी पैटर्न फ्रॉम देयर टू हियर, एंड कैसा मैनेज करे इस चीज को? सर when I used to sit up in a Arise ACN, I हम्म, used to sit up from 8:30 to 11 o'clock because of classes, including हम्म, classes. That helped me in a Arise Delhi. Like here also, that classes are used to around 9 o'clock, and 9 हम्म, o'clock to 8 o'clock approx, I can say, like initial 5 o'clock, and after that, when our intense phase come, that 9 o'clock, 8 o'clock, then हम्म, they used this all journey helped me, like this का and intense phase को कवर अप करने के लिए मुझे वो पिछले जो पढ़े हुए थे सर ना, वो मुझे काफी हेल्प किया कि हाँ हम्म, ये इंटेंस फेज जा रहा है, तो मेरे पास वो चीज पढ़ा हुआ पहले से है। जो लोगों को बाउंस कर रहा था, मुझे वो ग्रैप्स हो रहा था, मुझे वो आ रहा था। और नाइस। मैं सर बहुत जल्दी ये चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं स्लो लर्नर हूँ, धीरे 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 धीरे। और मैं सर क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे क्वालिटी बहुत पसंद है। जितना पढ़ाया गया था उसको कंप्लीटली किया। और ये 8-9 बजे सुबह से लेके 11-12 बजे तक रात का जो जर्नी है ना सर, ये कंटिन्यू प्रोसेस में रहा। और ये हाँ, स्टार्टिंग में हेक्टिक होती है, जो लोग नहीं आते हैं उसको हेक्टिक लगेगी, बट हाँ, वे बैक जब आपकी रिजल्ट आती है, आपके पेरेंट्स के फेस पे स्माइल दिखती है, देन ऑल पे ऑफ दैट सर, ऑल हार्ड वर्क पे ऑफ सर।
ट्रू। एंड प्रणव, पूरे सब्जेक्ट्स एक बार होने के बाद देयर इज अगेन टेस्ट एंड डिस्कशन, फिर फास्ट Yes, ट्रैक sir. रिवीजन के क्लासेस होते हैं, क्यूआरपी होते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट दिस सिस्टम, हाउ प्रोडक्टिव वाज दिस, आपने इसको कितना यूटिलाइज किया, और या फिर आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद यू वेंट ऑन टू योर ओन स्टडी मोड? सर मैं ये बोलूंगा सर ना कि वो जो सिस्टम है ना सर, जो आप लोग ने जो बनाया है, प्लान किया है, वो बहुत माइन्यूटली और बहुत ब्रिलियंटली बनाया गया है। एवरीवन, मैं अभी से अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो भी जूनियर इस प्रोसेस को देख रहे हैं और कर रहे हैं, वो इसको फॉलो करें, बिकॉज ब्लाइंडली फॉलो करें। बिकॉज हमारी छोटे माइंड ना उस चीज को वो समझ नहीं पाती है कि हाँ ये ठीक है भी कि नहीं भी। मैंने देखा है लोगों को कि इस चीज को करके अच्छे नंबर लाते हुए, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी देखा हूँ। और मुझे प्रियांश सर की बात याद आती है कि हाँ, आप वे बैक 3 or 4 days बैक आप मेडिसिन पढ़ो, आप उस बाद और सब्जेक्ट पढ़ते जाओ। ये नहीं कि आप आज एग्जाम है, कल आप मेडिसिन बैठे पढ़ रहे हो, कल एग्जाम दे रहे हो। नहीं, ये आज की मेहनत नहीं है। वो तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो आप 3 दिन पहले जो मेडिसिन पढ़े हो वो काम आएगा आपके मेडिसिन के एग्जाम में। वो बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम है, वो 4 दिन पहले जो पढ़े हो आप एग्जाम दो, बस नॉन ओनली एग्जाम दो। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम के दिन एक दिन पहले जस्ट मेडिसिन पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। तो ये एक प्रोसेस है, इस तरह प्रोसेस में रहोगे तो सही रहेगा। और एक ब्रिलियंट प्रोसेस है, लास्ट डे भी जो 1 तारीख से लेकर और 5 से 6 के बीच में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन हुआ था, जो तो वो स्पेशली कि आप जो छूटा हुआ, मानिए आपका कुछ छूट गया लास्ट में, या फिर कुछ वोलाटाइल है, इंपॉर्टेंट है, वो चीजें कवर कर रहे हैं तो हमारे टीचर्स, तो वो ज्यादा आवर की भी नहीं होती है और ज्यादा लेंदी भी नहीं होती हैं, क्रिस्प होती हैं। 3 से 4 घंटे, 1.5 1.5 पर देख लो आप, बस उसको 2 घंटे में देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्रणव, ड्यूरिंग दिस लर्निंग एक्सपीरियंस आप कई सारे टीचर्स को एक्सपीरियंस करे होंगे, उनके सारे एडवाइजर्स, उनकी लर्निंग टीचिंग स्किल्स एंड ऑल। कैन यू मेंशन सम ऑफ देम दैट यू रियली आर फॉन्ड ऑफ एंड यू एंजॉयड लर्निंग? सर, प्रियांश सर, यू लीजेंड सर, कुछ मतलब अवार्ड नहीं है आपके लिए सर, और प्रियांश सर, दोनों के लिए, मतलब दोनों का जो स्टाइल है सर, आउट ऑफ वर्ल्ड है सर। ये वो जो सर का है ना कि वो चीजों को बहुत बहुत ही क्लियर एंड बहुत सिंपल कर देते हैं। आपका है जो, हाँ आप मेरी चीजों को पढ़ो, आपको अभी समझ नहीं आया, ठीक है, स्टॉप, आप वहां, ठीक है, गुड, आप चीजों को और फिर से अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर मेरे सब्जेक्ट को आप पढ़ो। लगता है कि आप सर्जरी पढ़ा चुके हो, आप मेडिसिन के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो। तो ये इस तरह है। नदीम सर, सर फॉरेंसिक और साइकेट्री में मास्टर किए हैं सर, वो पूरे पूरे मतलब फॉरेंसिक और साइकेट्री को वो इतने इजीली वे में बता देते हैं सर। मैंने साइकेट्री लिटरली सबसे कम रिवीजन किया है, और मेरे कभी गलत नहीं हुए 5 में से सर, 5 में से 5 क्वेश्चन हमेशा, हमेशा, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से पढ़ा दिए थे सर। और मैंने ये ऑप्स गैनी सर पढ़ा ना सर, और पीएसएम, दे आर बेस्ट, दे आर बेस्ट, लिटरली दे आर बेस्ट, मोहित सर और प्रसन्नजीत सर। मैंने मेरे दिमाग में एक बार, मैं आपको शेयर करता हूँ सर, कि मेरे दिमाग में एक डाउट था कभी कभी कि मैं ये 130 पेज प्रसन्नजीत से पढ़ रहा हूँ और डॉक्टर प्रसन्नजीत से, तो ये मे भी मेरे लिए ना हुआ कि नहीं होगा। कभी कभी गलती होता था क्वेश्चन, तो सर बोलते थे हमेशा ना कि मेरे क्वेश्चंस देखो यूट्यूब पे और कुछ नहीं करो। आपको मे भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन गलत मिल सकते हैं, आंसर गलत मिल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही है। और मैं लिटरली देखा हूँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन बस गलत हैं पूरे ऑफ स्कैनिंग में, वो भी मेरे मिस्टेक से, मैं ब्लंडर किया हूँ उसमें। तो वो सर का प्रोसेस है। और डॉक्टर संदीप सर पीडियाट्रिक्स के वो बेस्ट है सर। उनका जो नोट्स है वो हर कोई डाउट कर लेगा, हर पर्सन उन पे डाउट कर लेगा कि हाँ ये बंदा का 80 पेज का नोट्स कैसे हो सकता है पूरे 80 पेज से। और मैं बोल सकता हूँ 80 पेज से आप मेडिसिन के कंसेप्ट बना सकते हो, पीडियाट्रिक्स तो पीडियाट्रिक्स है। ऑसम, ऑसम। कितने एमसीक्यूज करते थे प्रणव, और कब से स्टार्ट किया आपने एमसीक्यूज करना? एमसीक्यू मैंने लास्ट ईयर जब एशियन का स्टार्ट हुआ था सर, तो वहां से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, 2025 इस तरह से। मेरे पास एक ऑनलाइन ऐप थी, उससे करता रहता था। और मैं धीरे लास्ट तक मैं एमसीक्यू करते रहता था, मतलब जब भी टाइम मिले, मैंने गिन के कभी नहीं किया सर, मैंने बस करते रहा जितना हो सकता है। मैंने सारे पीवाईक्यू टच कर दिए हैं, सारे पीवाईक्यू टच कर दिए, और पीवाईक्यू जब भी मैं फाइनल ईयर में हो गए थे? कंप्लीट सर, कंप्लीट पूरा पीवाईक्यू मैंने टच किए थे। और इस प्रोसेस में मैं बता सकता हूँ कि हाँ, मैं पीवाईक्यू करने का काफी इतना हेल्प रहा कि जब मैं पहले पीवाईक्यू कर चुका, मैं 2 बार लगभग 1.5 टाइम मैं पीवाईक्यू कर चुका हूँ पूरे सेट को। तो इससे मुझे हेल्प मिला कि मैं जब सब्जेक्ट पढ़ता था
तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं बार-बार। These are important topics from this subject and these units. No, मेरे दिमाग में बैक ऑफ चल रहा था कि हाँ इसको याद करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। सो आई थिंक वो एक बार क्वेश्चंस आर आप बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। आई थिंक एमसीक्यूज करके रहेंगे, पीवाईक्यूज और पीवाईटीज देखते रहेंगे, तो इवन क्लास में भी आपका अटेंशन उस चीज पे एकदम से फोकस बढ़ ज्यादा हो जाता जाती है। यस सर। है। एंड कितना इम्पोर्टेंट है प्रणव जीटीज देना, और आपके जीटी स्कोर्स आपने कब से देना शुरू किया? आपके इनिशियल जीटी स्कोर्स क्या थे? सर माय फ्रेंड वाज देयर लाइक आकाश, ही हम्म, स्कोर्ड लाइक 223। हम्म, मैं और वो साथ में जीटी देते थे। हाँ, वो तो हम्म, जीटी के लिए पागल था, मतलब वो हमेशा जीटी देता था, वो 20-25 देता था। बट उसके से मतलब कारण मैं जीटी देता था। हमेशा जब वो जीटी देता था तो बोलता था तू जीटी दे, तू जीटी दे। हम्म, तो हम साथ में जीटी देते थे, और ये मैं 15 के करीब में जीटी दिया, 15-16 के करीब में। स्टार्टिंग फ्रॉम एशियन मैं वहां से जीटी दे रहा हूँ सर, यहाँ भी आके मैंने जीटी दिया। और ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती है इससे। नाइस। मेरी मेरी स्कोर सर स्टार्टिंग में मैं बैक एशियन था तो 150-155 के करीब में था। मैं बराबर एक 165 पे स्टक कर गया बहुत दिन तक, लगभग 5 मंथ तक मैं 165 पे स्टक किया। ग्रेजुअली मैं जब राइज दिल्ली में आया, मेरा मार्क्स सीधे सडनली 175 हुआ, 180 तक हुआ। मैं पहला जीटी यहाँ दिया हूँ, मेरा पहला जीटी यहाँ का जो जीटी था राइज दिल्ली का, अक्टूबर या नवंबर में 195 के करीब में था। और आफ्टर दैट ग्रेजुअली मैं इंक्रीज ही किया हूँ, कभी डिक्रीज नहीं किया। लास्ट जीटी मैं 238 तक था। प्रणव, कुछ अपने बारे में बताओ। आप, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, लाइक भाई बहन। मेरे 2 सिस्टर हैं, मैं एक अकेला भाई हूँ। मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, और उनके जो स्ट्रगल्स हैं मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं मेरे पापा, तो उनके जो स्ट्रगल है और उनकी जो विल पावर है कि मैं कर सकता हूँ, इतना सिंपल बैकग्राउंड से आके वो सारी चीज़ें अपना सब कुछ लगा देना दाँव पे एक बेटे के ऊपर में, तो वो मुझे काफ़ी अंदर से हिट करता है हमेशा। जब भी मैं पढ़ने बैठा था तो मेरे पापा का जो वो चीज़ें था मैं लगा के रखा था आगे में, कि मुझे अच्छा करना है। बस मुझे अच्छा अच्छा करना है, मतलब इन द सेंस मुझे बेस्ट करना है बस। मैं हमेशा अभी भी माइंड में रखा हूँ कि मुझे बेस्ट करना है, और मैं इस पे चलता हूँ। मैं मतलब ठीक किया, यहाँ तक मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो उनके फेस पे स्माइल दिखना मुझे अच्छा लगा बस, और मैं हैप्पी था कि मैं स्माइल दे पाया। या मेड योर पेरेंट्स प्राउड, और इतना जो भरोसा करके बच्चे पेरेंट्स भेजते हैं, यानी ये काफी काफी सारा तो काम पेरेंट्स का है कि भाई यहाँ तक सपोर्ट करना, फाइनल ईयर तक कितना एक्सपेंसेस है, अब्रॉड है, और स्पेशली यूजुअली फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सैक्रिफाइसेस देते हैं, एंड एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू गिव दैट स्माइल, दैट हैप्पीनेस टू देयर पेरेंट्स, and वैसे that seriousness should be there for, and a responsibility towards their parents. I agree completely. And मेरे सिटी से सर बहुत सारे एफएमजीज हैं, और mm, मेरे सिटी में एक वो फोमोस बना हुआ है लोगों को, कि मतलब एक अलग से वो धारणा बनी हुई है कि एफएमजी नहीं पास होती है। मैं जब जा रहा था सर तो मेरे रिलेटिव्स बोलने वाले हैं कि ये वहाँ ये नीट यूजी नहीं निकाल पाया, आप क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट होगा, वो रिजल्ट नहीं होती है एफएमजी के। मेरे पापा मेरे को फोन किए, बोले कि ये डॉक्टर साहब ने ना बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ो, 4-5 अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला, पापा को पता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ अभी, लेकिन वो इस चीज बोले। मैं बोला ठीक है पापा जी, बस। अब मुझ पे छोड़ दीजिए अभी। नाइस, नाइस। एंड प्रणव, कितना इंपॉर्टेंट होता है साथियों का सपोर्ट? आप लोग बोले एक ग्रुप में सब लोग आए, आप लोग एक ग्रुप में पास आउट हुए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऑल दिस 5 years ऑफ कॉलेज, और वापस इन कमिंग टू अराइव दिल्ली आल्सो, इट्स अ इंटेंस फेज ऑफ प्रिपरेशन। कितना इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट सिस्टम? एंड डू यू वांट टू मेंशन एनीबॉडी हु रियली सपोर्टेड यू ड्यूरिंग दिस जर्नी? यस सर, माय फ्रेंड्स आर देयर। पेरेंट्स सबसे पहले तो होते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनका तो कुछ मतलब हमेशा आपके ऊपर आता है, लेकिन नोनली अननोनली आपके पास हर जगह थोड़ा-थोड़ा जो सपोर्ट मिलता है ना। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी थे जो हमें सपोर्ट करते रहे हैं। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमेशा से। जूनियर्स हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि भैया आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो, आप कर लोगे। जब भी आप मतलब ये एक प्रोसेस है जो ये लास्ट में आके स्प्रिंट बन जाता है। इस स्प्रिंट में बहुत थकावट होती है सर, आप काफ़ी टायर्ड हो जाते हो, तो आपके बगल में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके आप कंधे पर रो सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई आज थक गया हूँ, लग रहा है कि आज कुछ नहीं हो पाएगा। कभी-कभी फील होती है कि हाँ, सब कुछ जा रहा है, इतना मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं स्टक कर गया हूँ, मेरे से पन्ना भी फ्लिप नहीं हो रहा है। लास्ट के टाइम में सर मेनली होता है,
लास्ट के 1 मंथ में कि जब पेजेस भी फ्लिप नहीं हो पाते हैं, तब वो आपके फ्रेंड रहते हैं, जब बोलते हैं आपको। हमने क्या किया था कि हम अकेले नहीं पढ़ पाते थे सर, क्योंकि हमारी अकेले का प्लान हमेशा फेल होती थी, तो हमने 4 सेम प्लान पे स्टिक कर गए। लास्ट 1.5 मंथ में हम 4 सेम प्लान पे स्टिक कर गए, और हम ना एकदम डांट के बोल के एक दूसरे को प्लान पिलाते थे कि अगर तुम आज, हम हमेशा प्लान रखते थे जो हमको 15 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। हमने 4 या 5 रिवीजन किया है साथ में सर, लास्ट 2-3 मंथ में 4-5 रिवीजन साथ में किया है। और वो एक दूसरे का बैक था कि हाँ, आकाश था, वो सुनील, प्रदीप, ये तीनों बैक थे कि हाँ भाई तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। वो था हमेशा लास्ट दिन तक सर। लास्ट दिन हम लोग फोन, मेरा लखनऊ था, सुनील मैं लखनऊ में थे, वो दोनों वहां पे थे। हम दोनों का प्लान सेम ही था कि तुमको लास्ट 2 दिन में क्या करना है। वो जो कम्युलेटिव इफेक्ट जो होता है ना सर, वो मोर देन सिंगल इफेक्ट होता है, मोर देन होता है, कभी भी ज्यादा होता है। तो हमको प्लान करने के लिए भी कोई स्टूडेंट होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और अच्छे स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, ना कि आपको डिमोटिवेट करे। हमारे फ्रेंड्स से, स्कूल के फ्रेंड्स, ग्रुपमेट है, अर्श हुआ, अबरार हुआ, तो ये सब सारे फ्रेंड्स जो है ना, ये हमेशा मेरे साथ थे कि बोलते थे कि तुम कर सकते हो, और तुमको जो भी दिक्कत हो तो बता मेरे को, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ऐसा बोलने वाला भी कम है। स्कूल Yes. फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स औरंगजेब है, मेरी दोस्त है सुनेहा, और ये लोग था, सब लोग था ना, ये लोग काफी हेल्प किया राइज में बैठने में। राइज में भी हम लोग साथ में बैठते थे। हम, हमारा एक फोटो काफी अभी वायरल हुआ कि हम साथ में एक फोटो डाले थे, तो वहां 10-15 स्टूडेंट हम लोग बैठे हुए थे, और सारे पास थे, और सारे अच्छे नंबर से पास, 180, 190, 200, ये सब। राइज का ही फोटो है। मेरे को भी भेजो वो फोटो, ठीक है, एक बार हम भी ये शेयर सब मैं करेंगे। अभी भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। नाइस नाइस। एंड प्रणव, आप इतने सब कुछ तैयारी करे थे, स्कोर्स भी अच्छे आ रहे थे, लास्ट में जस्ट क्लोज टू द एग्जाम, डिड यू फील एंग्शियस और कुड यू मेंटेन योर कंपोजर, एंड हाउ वाज योर एग्जाम डे एक्सपीरियंस? सर लिटरली बोले तो मुझे नहीं उतना एंग्शियस हुआ था, क्योंकि मैं जीटीज दे रहा था, और मुझे क्यों ना अंदर में वो एक चीज आ रहा था हमेशा कि तुम 150 तो कर सकते हो। इतना मेहनत करने के बाद तुम इतना ला सकते हो 150, और 150 करने के बाद तुम आगे ही सोचो, उससे नीचे नहीं सोचो। मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम के दिन मैं सुबह सुबह सही सर का वो सुबह सुबह मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख रहा था, और वो कंप्लीट किया। मैं वन गो थ्रू किया उससे, और एग्जाम में चला गया। एग्जाम में मैं बस अपने गॉड को याद किया और बैठ गया एग्जाम पे। और मेरा आदत हमेशा से था, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं तुम एग्जाम दे देते सो जाते हो, मतलब इन द सेंस सो जाते हो, इन द सेंस सर उसमें लीन हो जाते हो। तो मैं उसमें खो गया बस एग्जाम में, और एग्जाम में खोया, और मैं तीनों सेट खत्म हो चुके। मैं फर्स्ट पेपर निकला, तो मुझे वो फील आ रहा था कि इसमें मैं 115 कर गया हूँ, 100 क्रॉस कर चुका हूँ, 110 115 कर चुका हूँ, ये इतना हो रहा है मेरा। तो मैं सेकंड के लिए भी वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर में कि उसमें भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, बट सेकंड में मेरे सिली मिस्टेक ज्यादा हुए थे, लेकिन गैप में क्या करे आप, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के गैप में क्या करे, पढ़ाई कुछ करे सर या मैं करे? मैं एक स्नैक्स लिया छोटा सा, और मैं ना ये सर का जो सर्जरी का सर का जो नोट्स था ना, शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, शॉर्ट नोट्स नहीं, 100 क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। मैंने उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और उनके बहुत सारे ये थे 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन जो थे, मैं अपने 20th नोटबुक टाइप के बनाए थे सर। वो छोटा मैं नोटबुक बनाता था हमेशा से, तो उसमें मैं आपके कुछ रेडियो का कुछ साइंस लिख दिया, मेडिसिन का कुछ छोटा पॉइंट लिख दिया। इस तरह के छोटे पॉइंट्स का एक बुक था मेरा, उसको मैं गो थ्रू कर रहा था। वो 1 घंटा मैं बस गो थ्रू किया, मैं ज्यादा उस पर जोड़ नहीं दिया, बस गो थ्रू किया, उस पेज को फ्लिप किया, और मैं जल्दी चला गया सेंटर पे। सेंटर पे जाके मैं कम से कम 45 मिनट में रेस्ट किया, वहां बैक डाउन करके, हेड डाउन करके मैं रेस्ट किया, अपने आप को काम किया कि हाँ वो आगे आने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। 15 मिनट में वहां पे मेडिटेट किया थोड़ा सा, और बस उसके बाद एग्जाम। नाइस नाइस। एंड प्रणव, आजकल सेंटर्स काफी दूसरे सिटीज में मिल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं दिल्ली से आपको लखनऊ जाना पड़ा, कितने दिन पहले गए थे आप? सर मैं 2 दिन पहले गया था, क्योंकि लास्ट डे मैं हैक्टिक नहीं लेना चाहता था, और हमारी प्लान्स कुछ ऐसी थी सर कि 2 दिन में मुझे ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन करना है। तो मैं वो 2 दिन हमेशा बचा के रखता था कि हाँ, मैं लास्ट 2 दिन हमेशा, मेरे लिए 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं अभी भी सबको बोलना चाहता हूँ, लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैंने काफी स्टूडेंट को देखा हूँ वो लास्ट 10 डेज में चोक करते हुए, और जो वो उसमें अच्छे से वो बुक पढ़े हैं ना, अच्छे से वो फ्लिप किए हैं पेजेस, तो वो बहुत अच्छा करते हैं।
तो मेरे लिए वो 2 दिन अच्छा था, तो मैंने 2 दिन में प्लान किया कि मुझे ये सब्जेक्ट इस तरह करना है। अप्रॉक्स में सर 15 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट किया था उस 2 दिन में। मेरे प्लान 19 के थे, बट मैं धीरे-धीरे प्रायोरिटी बेसिस पे करते गया, लास्ट में कुछ छूट गया तो वो छूट गया। बट मैं प्रायोरिटी 14 कर लिया, और मैं 14 टच किया तो मुझे लग रहा था कि अभी तो देखा हूँ एग्ज़ाम में, अभी तो देखा हूँ इसका आंसर यही है, कन्फर्म यही है। वो कितना भी कन्फ्यूज़ करना चाहे ऑप्शन में, मैं अपने अंदर से श्योर था, अभी मैं देखा हूँ, जस्ट अभी देखा हूँ, ये यही है। सही है, सही है। तो वो रीसेंट रिकॉल इंपॉर्टेंट है। वही बोलते हैं कि पूरी तैयारी वो रिवीजन के लिए होती है कि भाई आप कितना फास्ट और कितना अच्छे से रिवीजन कर पाते हो। यस सर, वो 10 डेज़ का जो रिवीजन था ना सर मेरा, वो मैं 2 में डिवाइड किया था। एक 6 था, एक 4 था। और 6 में मैं पूरा कंप्लीट किया 19 सब्जेक्ट। फिर मैं 4 में ये 2 दिन पहले मतलब वोलेटाइल पे मतलब मैं वो हमेशा उसको बोलता हूँ बिग 4, तो वो बिग 4 की दे दिया, वो मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम और वो क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम और ऑप्सकैनिक, इन चारों को 2 दिन दिया मैं पूरा-पूरा। और फिर 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को कवर करने का सोचा, तो उसमें से 15 कर लिया। 14-15 मैं हैप्पी था कि मैं इतना कर लिया बस। नाइस, और नाइस। लास्ट दिन मैं 9-10 बजे सो गया था, उस टाइम में फिर आराम से उठा और एग्ज़ाम दे दिया। ओके। एंड प्रणव, some mistakes that you see from your friends or students or classmates, कई सारे सीनियर्स भी आप देखते हो कि कोई कोई तैयारी में आपको लगता है कि भाई ये चीजें अगर बच्चे कम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होंगे और रिजल्ट्स ज्यादा होंगे। some mistakes that you can identify from दिल्ली में भी आपने देखा होगा कई सारे बच्चे आते हैं, सेम इंटेंसिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। I saw lot of people like start jumbling from one platform to another. Like I can say that stick with one teacher, one platform, anybody, anyone. मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में कोई एक चूज कर लो, उन पे रह जाओ। एंड लास्ट में जो फ्लड आती है सर, वो जो नॉलेज की, मैं उनको बोलूंगा कि 5 घंटे में तुम्हें कोई नहीं है जो तुम्हें सब कुछ पढ़ा सकता है। 3 घंटे में तुम्हें पूरे ऑफ स्कैनिंग नहीं पढ़ाई जा सकती है। मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 3 घंटे का वो जो सूडो हैप्पीनेस होती है ना, कि 3 घंटे में जो वो है पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, कि वो 3 घंटे में ऑफ स्कैनिंग खत्म कर चुके हैं, वो गलत है, वो गलत है। और लास्ट का जो लास्ट रिवीजन करके आता है सब लोग जो, उस पे विश्वास नहीं कर सकते हो। आपके मेन नोट्स बहुत ट्रू। इंपॉर्टेंट है, आप उसको गो थ्रू करो, लास्ट तक गो थ्रू करो। सेकेंड मिस्टेक सर, मैंने देखा है लोगों को जीटीज नहीं देते हुए। साथी लोग को बोला कि जीटीज दो, दिए भी, अच्छा रिजल्ट भी आया, उनको मैंने पुश किया, वो भी मुझे पुश किए, लेकिन बहुत लोग पुश करने के बाद भी जीटीज नहीं देते हैं, वो एक फियर आता है। मैं बोलता हूँ उससे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। एक सेकेंड लास्ट जीटी था सर एराइज का, जो आप लोग ने बनाया था, और वो उसका ना वो प्रोसेस बहुत लेंदी था, खासकर सेकेंड पेपर का फर्स्ट जो ये था, ए सेक्शन था, उसमें बहुत लोग चोक कर रहे थे। इवन मैं 10 सेकेंड था, मैं लास्ट आंसर कर रहा था फर्स्ट सेक्शन का, और मैं तब रियलाइज किया, मैं पहली बार पैनिक करता था। मैं हमेशा एग्जाम में वो घुस जाता था, मैं पहली बार पैनिक कर रहा था कि मुझे 10 सेकेंड है। मैं सेम थिंग फील किया हूँ सर, और मैं एग्जाम देके मैं ना फ्यूरियस था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या वो है, ये है, टीचर्स बनाए हैं ये लगता नहीं है ये टीचर्स बनाए। और मैं सोचा था कि उस एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, बट मेरे 235 आ गए थे उसमें। और बट मैं एग्जाम जब दिया ना, तो एग्जाम के टाइम में मुझे फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट में सेम तरह का फील हुआ, और मैं प्राउडली से कर सकता हूँ कि मैं उस जीटी कारण से उसमें कर पाया। मैं 15 सेकंड में मतलब लास्ट 2 मिनट में मैं सर 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, और 15 सेकंड में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हूँ। मुझे आज भी याद है वो चीज, मैं बैक ऑफ माइंड में चल रहा था कि मैं ये किया हूँ, मैं कर सकता हूँ आगे में। तो ये जीटी का ही कमाल है। एंड प्रणव, एग्जाम के बाद काफी रिकॉल्स का एक अलग बनता है। वर यू पार्ट ऑफ दैट, और या आप आके आराम से घर पे बैठ के क्या कैसा देखा आपने रिकॉल्स, आपको पता चल गया था जब से ही? हाँ सर, मैं देखा रिकॉल, लखनऊ से दिल्ली आते समय रात में ही देख लिया था मैंने वो। तो मैं आके, मुझे आज भी वो मेरे पास सीट है, मैं व्हाइट सीट पे सुबह में मैं रिकॉल्स का कंप्लीट करके 220 प्लस लिख के साइन करके डेट करके हटा दिया, और मैं लिख के हटाया, मैं 226 आ गया सर वो किसी तरह। Awesome, awesome. Really happy, really Yes, sir. happy. वो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस सर, तो Really एकदम। happy, really happy. Any quick words of advice to the juniors who are also in the same zone, studying in the second year, third year?
अनअवेयर ऑफ व्हाट इज अहेड, एंड एफएमजी का एक हमेशा एक प्रेशर होता है. एनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू? सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एंड गो स्टेडी एंड लाइक डोंट बी हरी लाइक इट्स अ मैराथन. आई ऑलवेज से इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. जब आप स्प्रिंट के फेज में आओगे आपके टीचर स्प्रिंट बता देंगे आपको ये स्प्रिंट हो गया है, बट ये मैराथन है. धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लो और हमेशा अपने मतलब मेंटर्स पे विश्वास करो, फेथ रखो. उनके नोट्स को बोलो कि हाँ ये गोल्ड है, बस गोल्ड स्टैंडर्ड है. हमारे में बोलते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा. और मैं बताता हूँ सर, वो बोला जाता है ना सर कि 50 क्वेश्चन बाहर के आते हैं, मुझे लगा कि वो 10 क्वेश्चन ही बाहर के थे सर. वो भी नोट्स से थे. तो आप उस नोट्स पे विश्वास करो, कोई शॉर्टकट ना लो, शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता है. और हमेशा 2 से 3 आवर निकालो. आप जूनियर हो, दो सेकेंड थर्ड ईयर में हो, आप 2 से 3 आवर निकालो डेली का, और आप वो चीजें धीरे 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 करो और पूरे पूरे करो, और आपका रिजल्ट अच्छा होगा. आप विश्वास रखो, आप दिमाग में ये साइकिट्रिकली रखो दिमाग में कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट होगा. ये ट्रू है, और जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है, आज नहीं तो कल हो ही रहा है. एंड डॉक्टर प्रणव, कई सारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो अभी जो सीरियसली स्टार्ट नहीं किए, सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा इंडिया आके, कुछ ना 6 महीने में हम कर लेंगे. कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि भाई बस वेट करते हैं टाइम का कि भाई वो हम आएंगे तब देखेंगे, अभी से क्या जल्दी है. हाउ सीरियस डू यू वांट देम टू बिकम एंड हाउ इजी इज दिस? सर कुछ नहीं होता है सर, इस तरह कुछ कुछ करने से सोचने से कुछ नहीं हो पाता है. मैंने भी लास्ट में देखा है लोगों को, वो लास्ट तक वो सोचेंगे, फिर धीरे से उनके बैक माइंड में आएगा कि हाँ ये कोचिंग कर लेते हैं, वो सीरियसनेस नहीं आती है. आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप, हाँ ये एग्जाम इजी है उनके लिए जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 दिन आवर. अगर आप मेहनत नहीं किए हो तो मैंने उन स्टूडेंट को भी पास होते देखा है जो कुछ मेहनत नहीं किए हैं, यहाँ आके सीरियस हुए हैं. आपको सीरियस होना पड़ेगा. आप वहां से जब आओ, ये दिमाग में रख लो कि हाँ यहाँ आके मुझे ये, यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाना है. यहाँ जैसे राइज है, राइज एक बेटर माहौल माहौल देती है. मैं एनवायरमेंट का जो बात कर रहा हूँ वो बेस्ट है राइज का. प्रोसेस पे विश्वास रखो, जो स्टार्टिंग से करते हैं ना ABCD एनाटॉमी का, जो लॉन्ग बोन कौन है शॉर्ट बोन कौन है, वहां से स्टार्ट करके आपको वो जो बताते हैं कि हाँ कहाँ से मसल कौन अटैचमेंट होता है, कौन नर्व पियर्स करती है किस मसल को, तो यहाँ तक आपको पढ़ाते हैं वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक. तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं पढ़े हो तो आपको जब कोई फास्ट पढ़ाने लगे तो आप नहीं पढ़ सकते. लेकिन वो जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपने 2 आवर कभी नहीं दिए है, तो आप 8 आवर बैठो और बिलीव करो कि वो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देगा, और वो आप वहां से डिटरमाइन करके आओ. यहाँ आके आप जो सोचोगे कि हाँ अब मैं करूंगा, अब मैं सोचूंगा, तो वो चीजें नहीं होगी. आपको लास्ट में जब फेलियर मिलेगी ना, तो उस टाइम बहुत रिग्रेट होगा कि हाँ ये चीज मैंने क्यों नहीं सोचा था. आप अंडर गाइडेंस हो, पहले टीचर से अंडर गाइडेंस हो, नोट्स कंप्लीट कंप्लीट करो, क्योंकि विदाउट नोट्स कुछ नहीं हो सकता है. फेथ करो टीचर्स पे, और फेथ करके उसको रिपीट करो. मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है तब जाके कोई ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स तो बराबर होती रहती हैं. तो आप बस, मैं उनको बोलता हूँ कि आप ट्रस्ट करके किसी को और ज्वाइन करो चीजें, और बस सब अच्छा हो जाएगा. एंड एक प्रणव, एक समथिंग ऑन दिस थिंग, एंड ऑन अ पर्सनल नोट, रेडियोलॉजी स्पेशली, बच्चों को Yes. ऐसी तकलीफ होती है उसमें, और व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन टू सी दैट इट इज मोर पैलेटेबल? सर आप जो रेडियोलॉजी पढ़ाते हो ना सर, वो हम लोग को लगती थी कि लिटिल बिट डिफिकल्ट. वो आपने क्योंकि डिफिकल्ट हम लोग को उस टाइम लगा था ना पहली बार, जब मैं 2 बार 3 बार पढ़ चुका हूँ तो मैं तो बहुत इजी था, और लोगों को लगा कि डिफिकल्ट है. मैं राइज में भी पढ़ा था, एशियन में भी, और आगे में मैं आपका बहुत सारा वर्ड्स एकदम एज इट इज रिमेम्बर था हमेशा, कि सर बोलेंगे ये इसके बाद ये बोलेंगे. तो लेकिन मैं लोगों को डिफिकल्ट लगा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, अगर कोई चीज पहली बार पढ़ा रहे हैं तो उनकी चीजों को वहां पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो और रख दो, कोई दिक्कत नहीं है. आप पूरे से फिर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि सर जो पढ़ाए हैं ना, वो आप रेडियोलॉजी नहीं पढ़ाते हो सर, वो एज ए रेडियोलॉजी फैकल्टी आप रेडियोलॉजी नहीं पढ़ाते हो. वो आपके कंधे के ऊपर में आप डायरेक्टर का पोस्ट पे हो ना, तो आप सारे बच्चों को ना सारे सब्जेक्ट कम्युलेट करने का कोशिश करते हो. तो वो पूरे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बेसिक्स जो आप क्लियर करते हो, जितने रेडियोलॉजी साइन बन सकते हैं और जितने रेडियोलॉजी से कनेक्ट हो सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ कि वो जो लोग बोलेगा कि मेडिसिन से क्वेश्चन सोल्व होगा, लोग बोलेगा सर्जरी से क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन वो रेडियोलॉजी में कवर होता है.
वो आप जो बोलते थे ना कि ये नोट्स तुम्हारा जो मेन नोट्स में पढ़ा रहा हूँ 30 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो राइट है सर। वो 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो एग्जाम में। वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो रेडियोलॉजी के थे वो तो इजिली हो गया, जो जो इमेज बताया गया क्वेश्चन के फॉर्म में वो भी हो गया कि हाँ इस तरह चीजें हैं, ये बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। वो रेडिएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आइसोटॉप्स के बारे में ये याद करो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं। मेडिसिन में आप थॉराइड स्कैन जो होता है वहां आप पढ़ोगे, आप भी पढ़ाते हो, तो ये आपका सब्जेक्ट लोगों को लगेगा डिफिकल्ट है, बट मैं बताऊं कि आपके ऊपर पेशेंस रखे तो चीजें उनकी ज्यादा आसान हो जाएगी, बस रेडियोलॉजी ही नहीं और सारे सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, द सब्जेक्ट नेचर इज लाइक दैट, यस सर। पहले एक बार करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके साथ रिदम में आता है। एंड बच्चे, व्हाट डू यू सजेस्ट प्रणव, कि सारे सब्जेक्ट्स करना चाहिए या फिर कुछ सेलेक्टिवली 12-13 सब्जेक्ट्स करके हो जाएगा? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। सारे सिलेक्ट करने के बाद ही चीजें उस तरह लेवल की आती है कि आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप एग्जाम में एंग्जियस नहीं रहते हो, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मैंने बहुत लोगों को एंग्जियस होते देखा है, और शायद मैं एंजाइटी का एक ही सॉल्यूशन बता सकता हूँ। कोई बता सकता है कि एग्जाम से पहले सो जाओ, ये कर लो वो कर लो, नहीं। अगर आप पूरे स्टूडेंट करके गए हो तो वो फीलिंग आ रही होगी आपको कि 150 आप ला सकते हो, फिर एंजाइटी नहीं आएगी आपके पास में। सही बात। एंजाइटी नहीं आएगी। और सारे सिलेक्ट करने के बाद से वो जो आप क्वेश्चन छूट रहे होंगे आपसे ना, लगा कि तुक्का मार रहे हैं, वो तुक्का भी लग रहा होगा कि बैक ऑफ माइंड में आप चल रहा है कि अरे ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये सब्जेक्ट में था, थोड़ा बहुत लिंक है, तो ये हो सकता है। बट अगर आप नहीं पढ़ोगे 2-3 सब्जेक्ट, अब कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, और वो एग्जाम में जो प्रेशर आएगा ना, तो वो दूसरे आते सब्जेक्ट को खराब कर देगा। तो इसलिए पढ़ना हाँ, खुद से ज्यादा जरूरी है। जितना आप कोई नॉलेजेबल रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना लेस एंग्जाइटी रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणव, काफी मजा आया बात करके, आपने काफी पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी वेरी इंस्पायरिंग टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, एंड सीइंग यू थैंक यू फ्रॉम 2019 till now to your whole journey and the trust that you have kept in the system, and we see you right throughout the journey. मुझे याद है आप एशियन में भी as a second year student, third year student, you used to come and meet, and and that positivity that you radiate always, and we wish you much more very bright future ahead. With such high scores, you should pursue. You're one of the bright students of the country, bright doctors of the country. You should pursue your, NEET PG and future studies. And we wish you a lot of success, lot of laurels, and convey my regards to your parents, both teachers, and they have the kind of support that they have given to you, and we really appreciate the whole efforts of the entire family to get a very bright doctor, and heartiest congratulations to you once again, Dr. Pranav. Best wishes. सो मच। Okay. थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।